So the solution is given weight vector is this, the input vector is this. Okay, already given to you. So net कैसे find करेंगे? Net यानी yn is equal to summation of this values w1 x1 multiply करेंगे. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, x1 मल्टीप्लाई बाय w1, x2 मल्टीप्लाई बाय w2. This is what we have done over here. What you get as net as 70. You get net as 70. Now how you have to apply the activation function here. So ये summation निकल के आ गया है यहाँ. You got this net value. Now that goes into the activation function. So what is the activation function? Here in the example it is written 2 into net. So what you do is net क्या value क्या आ रहा है? 70. So you say 2 multiplied by 70, which is equal to 140. Is it fine? So this is what is the output of the neuron. It was very easy. I hope it was not at all tough for you all to understand. No, so a net function can be anything given. So you can apply that after the summation. नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर वी आर हैविंग अ बायस. तो इससे पहले के एग्जाम्पल्स में हमने बायस को नहीं देखा है. इसमें क्या है कि देर इज अ बायस ऑफ 0.45 अप्लाइड. So same thing moves over here. Bias has to be added at the end. So let's look at this. Solution क्या है? The given net consists of 2 input neurons, a bias, and an output neuron. Only one output neuron is there. The inputs are 0.2 and 0.6. 0.2 and 0.6 are the input. Weights are 0.3 and 0.7. Weights are 0.3 and 0.7. Since the bias is given as 0.45, what you have to do is you have to include this bias also. So now what is the formula? You do as it is, बस bias add कर देना है. तो 0.45 bias को आप add कर रहे हैं. We're adding this bias to 0.2 multiplied by 0.3. ठीक है, 0.2 multiplied by 0.3. 0.6 multiplied by 0.7. So this is 0.6 multiplied by 0.7. Only the bias is added to it. So this is the y in value. Are you getting it? The net value. So the net value is what? Net input is what? 0.93. Okay, this is question number exercise 4. In this, what is happening is activation function is a binary sigmoidal function and bipolar sigmoidal function. इससे पहले हम we saw an activation function, isn't it? That was 4 multiplied by net, some number multiplied by net. So it was easy. Now we are having activation function as binary sigmoidal and bipolar sigmoidal. So what you will do to find the net? You know it now. 0.8 multiplied by 0.1 plus 0.6 multiplied by 0.3 plus 0.4 multiplied by minus 0.2 plus the bias plus 0.35. तो ये आपको y in मिल जाएगा. After you get the y in, you have to apply the binary sigmoidal function. So you have just seen, na, we just did a recap. What is a binary sigmoidal function and what is a bipolar sigmoidal function? So you should remember those formulas to apply it over here. So the solution goes like this. We have written it all over here. समेशन कर दिया है और बायस को यहाँ ऐड कर दिया है. ठीक है, और फिर ये आपको मिल गया. y in की वैल्यू आपको मिल जा रही है यहाँ 0.53. Now this summation is coming, it has to be fed in, this y in has to be fed into an activation function. So what is the activation function here? Binary sigmoidal activation function. तो उसका फॉर्मूला क्या है आपका binary sigmoidal का? ये है. So 1 divided by 1 plus e raised to minus y in. So what is the y in value? 0.53. So you are just applying 0.53 here. And you can just calculate it directly to get this value. Is it easy, everyone? Binary sigmoidal, you have to remember this formula. Okay, 0.53 आपको बस ये y in की प्लेस पर रखना है और आप ये आउटपुट आप फाइंड कर सकते हैं. इसी तरह से यू हैव बाइपोलर. बाइपोलर के लिए ये फॉर्मूला है. The same thing you'll apply over here. 0.53 minus 0.53. ये 0.53 है मगर यहाँ आपको माइनस लगाना है. ओके, माइनस. सो दिस इज व्हाट कम्स एज अ बाइपोलर सिग्मोइडल. अगर बाइपोलर रहेगा तो ये वैल्यू रहेगा सिग्मोइडल का. अगर बाइनरी रहेगा तो दिस इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द न्यूरॉन. नेटवर्क आर्किटेक्चर ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, multiple layer feed forward network, and there is something called a reoccurrent network. So this we have already looked at. Input layer है, output है, इसमें एक input layer है और एक ही output unit है. Learning thing,
we'll look into the next lecture. Next slide. Okay, so initially we start with bias as 1. Okay, links, it would have a set of connection links which carries a weight including a bias. Okay, this is already talking about it. Adder, it adds the input after they are multiplied by the respective weight. So we have already seen the example of the same. And activation function, activation function in this case, that example that we are going to look, is a heavy side step function. हेवी स्टेप फंक्शन मतलब यही है, बाइनरी स्टेप फंक्शन. बाइनरी स्टेप फंक्शन मीन 0 या 1 आउटपुट आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा आउटपुट. That is, this is an activation function that we are going to look at, and we are going to look at some examples of these. A single perceptron classifies input patterns X into two classes: a linear combination of signals and weights for which the augmented activation potential is 0. This describes a decision surface which partitions the input space into two regions. The decision surface is a hyperplane specified by these values. So what are we doing is we are taking the matrix of weight and matrix of the inputs, and we are going to calculate the output over here. So here, if you look at this, we have got input, consider this 3 input perceptron with weights 2, 3, and 6. 2, 3, and 6 are the weights. X1 is this, X1, X2 is this, and this is 1, means this is bias. 1 likha hai nahi, this is a bias. So now, if you have to multiply, we have already looked at 2 multiplied by X1, 3 multiplied by X2, minus 6 multiplied by 6. So what is, you will get this kind of an equation. So now what is happening, your data, the input that you're putting in is getting converted into this kind of a linear function. Okay, the input space x1, x2 is two-dimensional, and the decision plane is reduced to now a straight line. The input space, the decision plane is reduced into this particular line now. So if you draw this line, what happens? If you draw this line, we are going to take a decision as to, if it is greater than this line, the value of the output is 1. If it is less than this line, then the value of output is 0. So we are bifurcating maybe 2 different patterns that are occurring in the input into 2 halves. Okay, 0 and 1. In general, 2 basic methods can be employed to select a suitable vector factor. अब आप बोलेंगे कि ये vector है, वो कैसे पता करें? कोई भी, how do you decide on weights? That is talked about in this. In general, 2 basic methods can be employed to select a suitable weight factors: by offline calculation of weight or by learning procedure. One way is you know the domain and then accordingly you give weights. If the problem is relatively simple, you can do this. So if the problem is relatively simple, it is often possible to calculate the weight vector from the specification of the problem itself. But at times it is not possible, most of the time. So what you do is you have a learning procedure for it. The weight vector is determined from a given training set of input vectors. ठीक है, तो कुछ इनपुट और आउटपुट वेक्टर्स हैं, मतलब एक कुछ क्लास है, उसके कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, और उसको उनका पता है कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट पास्ड और फेल्ड द एग्जाम. सपोज वी आर कीपिंग इट लाइक दैट. So one student has got 5 subjects. Okay, X1, X2, X3, X4, X5. 4 many subjects are there. And depending upon it, we already have the data of that class, that particular student happened to ultimately pass the semester or actually flunk the semester. Okay, so what are we going to do is we are going to train this neural network with the training data that we are having. And accordingly, just because we are having the output also with us, so what are we going to do is we are going to train this and we are going to adjust the weight accordingly. So initially, how do we start? We make the weights as 0 only. सभी weights को 0 बना देंगे हम, और जब हम कैलकुलेशन करेंगे एक इक्वेशन आएगा हमारे पास, और अगर हम देखेंगे जो हमारा जो टारगेट वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है, जो हमारी टारगेट वैल्यू है मतलब जो हमारे डेटाबेस में है और जो हमने कैलकुलेट की है, कैलकुलेटेड वैल्यू और टारगेट वैल्यू अगर सेम है तो हम वेट्स बराबर उस वैसे ही रहने देंगे. अदरवाइज व्हाट वी विल डू इज वी आर गोइंग टू चेंज द वेट्स. We are going to change the weights. So the perceptron network can be trained for single input, a single output unit as well as multiple output unit. But we are in your exam, you are only going to have single output unit.
Initialize the following. What are you going to do? Initialize the weights, the bias and the learning rate. तो बेस और बायस जो और वेट्स है ना, इनको आप कैसे इनिशियलाइज करते हैं? जीरो से इनिशियलाइज करते हैं. ओके, एंड लर्निंग रेट जो है उसको आप 1 रखते हैं ज्यादातर. इट कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 0 to 1. हाउ फास्ट यू वांट इट टू लर्न, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो लर्निंग rate will depend upon the domain maybe. Okay, so you can decide on the learning rate, but for our sake, if nothing is given to us, we'll keep the learning rate alpha as 1. What are we going to do is continue with the stuff. So initially you'll have these weights and bias को 0 कर देंगे हम, और learning rate को 1 कर देंगे if it is not given. If it is already given, accordingly we will go. But otherwise, if it is not given, we make weights and bias 0 and learning rate alpha as 1. Now we are going to repeat 3 to 8 steps continuously till a particular condition is true or not. What is the condition? What are we going to do? Step 4 to 6 is doing what? For every training vector. So आपने जैसे कि feed in किया for one student है ना, one student के 5 marks subject के marks feed in किया. आपने देखा कि वो एक्चुअली डेटाबेस में लिखा है कि वो फेल हो रहा है, मगर जब आपने कैलकुलेट किया तो उसमें लिखा है कि नहीं वो पास हो रहा है. तो एक्चुअली टारगेट और हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है मैच नहीं कर रही. तो आप क्या करेंगे? फिर ये जो आया है इससे आप दोबारा से वेट्स को चेंज करोगे. आप वेट्स को तब तक चेंज करते चले जाओगे जब तक कि आपकी जो टारगेट वैल्यू से मैच करता हुआ नहीं मिलता है. ठीक है, तो यही स्टेप हो रहा है 4 to 6 के बीच में. ओके, यू टेक इनपुट, 5 स्टूडेंट्स का इनपुट लिया या 4 स्टूडेंट्स का इनपुट लिया, व्हाटएवर, एंड अकॉर्डिंगली यू विल कीप ट्रेनिंग द वेट्स. हाउ डू यू रियली फाइंड द y in value? You have already seen the bias plus the summation of 5 students का डेटा है, तो 5 students का डेटा multiplied by the individual weights, you are going to add it up, and then if you have some bias, you are going to add to it. That is how you get the y in value. Once you get the y in value, what you do? You pass it through an activation function. So now this activation function can be anything, depending on, you'll have to decide on it. Mostly in the exam, you will be given. Mostly it will be given this activation function. What is the activation function saying? That if yn is greater than 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 1. If yn is between this, sorry, 0 नहीं, theta is the threshold. Okay, if it is more than this threshold, the output would become 1. If it is between minus this threshold to plus threshold, then it will be 0. If it is less than this threshold, then it will be 1. So इस तरीके का कोई activation function would be given to you in the example. So accordingly, adjust the weights and bias को भी adjust करेंगे और weights को भी adjust करेंगे. तो आप क्या कर रहे हैं? weight जो new weight find कर रहे हैं और new bias find कर रहे हैं. new weight कैसे find करते हैं? अगर आपके टारगेट और जो आपका आउटपुट आया है, टारगेट और आउटपुट अगर सेम नहीं है तो ही आप ये करेंगे. अगर टारगेट और जो आपने कैलकुलेट किया है y का वैल्यू वो सेम आ रहा है तो आप वेट को वैसे ही रहने देंगे. ठीक है, तो न्यू वेट इज इक्वल टू द ओल्ड वेट ओनली एंड न्यू बायस इज इक्वल टू द ओल्ड बायस. इट विल रिमेन लाइक दिस. But if the target and your calculated value is not same, what you do is you find the new weight. How do you find the new weight? You find the new weight by taking the old weight and adding alpha, that is the learning rate, multiplied by the target. टारगेट की जो वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई करेंगे और xi की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरह से आपको न्यू वेट मिलेगा. और आप न्यू बायस कैसे फाइंड कर रहे हैं? जो ओल्ड बायस था वो लेंगे और लर्निंग रेट और टारगेट को मल्टीप्लाई करके आप इस तरह से बायस और वेट को बदलते रहेंगे. कब तक बदलते रहेंगे? जब तक कि आपको ये टारगेट और टी सेम नहीं आ जाता. Here y is the actual output and t is the desired target output. Y is what you have calculated and t is what is desired. जो आपका ट्रेनिंग से दिया हुआ है उसमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के ये मार्क्स हैं तो वो एक्चुअली पास है. But what are we doing is, if the target and the value of y doesn't match, then you are going to keep on changing the weight and the bias. If the target and the calculated value of yours is same, then you do not change the weight and the bias. This is what you do. And at the end, test for the stopping condition. If the stopping condition has come, you'll close. Okay. So this we have just written down in a flow chart. The same thing we have just written down in this flow chart to explain. Okay. Moreover, you already know what is a linear separable
प्रॉब्लम ना, लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम मतलब एक लाइन ऐसी बना सकते हैं जिसमें कि आप दो क्लासेस को सेपरेट कर सकें। तो जैसे कि यहाँ हमने एग्जांपल देख रहे हैं लीनियरली सेपरेबल डेटा को, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसी को लेकर हम अभी एक्सेल शीट पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सिंपल एग्जांपल कैसा ले रहे हैं कि एंड फंक्शन लगा रहे हैं फॉर टू इनपुट्स, सपोज द इनपुट्स आर x1 एंड x2, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है इनपुट, अगर आप एक्चुअली देखते हैं तो x1 की और x2 की क्या वेराइटी ऑफ वैल्यू, क्या कॉम्बिनेशन क्या होता है, x1 कैन बी 0 0 1 1, x2 कैन बी 0 1 0 1. Okay, now what are we doing is we are doing an and function of this. So when you do an and function, what happens, the value of y will become this. So this is what is my target value. Okay, this is what is my target value. क्योंकि एंड कैसे जीरो कब होता है, जब ये दोनों जीरो होंगे तो y की वैल्यू जीरो होती है ना, एंड करेंगे तो ये जीरो है ये वन है तो y की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि व्हाट आर वी परफॉर्मिंग इज एन एंड फंक्शन, ठीक है। मगर यहाँ अगर आपको बाइपोलर इनपुट लेना है तो आप क्या करते हैं, जहां जहां भी जीरो है ना वहां वहां -1 लिख देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अभी 0 0 0, यानी कि -1 -1 1, 0 1 0, -1 1 -1. So whenever, so in the exam, in a question it would be given कि इनपुट जो है मुझे बाइनरी लेना है कि बाइपोलर लेना है। अगर बाइनरी इनपुट लेना है मुझे तो इस तरह के ये बॉक्स में जो मैंने लिखा है वैसे लिखेंगे इनपुट आप। अगर आपको बाइपोलर इनपुट लेना है तो आप क्या करेंगे, जहां जहां जीरो है वहां वहां -1 लगेगी। तो दिस इज द वेराइटी ऑफ पॉसिबल, इजंट इट, x1 और x2 की यही वेराइटी पॉसिबल है। तो जब दोनों ही जीरो होंगे तो y की वैल्यू भी जीरो हो जाती है इस तरह से। So this is what is the and. Now what have we done here is we have already this, यहाँ तो calculate already कर रखा है इन्होंने, we'll see how to calculate it. So we have here taken w1 as weight for x1 का weight है 1, x2 का weight है 1, बायस -1 है और थीटा जो है 0 है। सो एक्चुअली इन्होंने कैलकुलेट करके फिर ये वेट्स दिए हैं। हम क्या करेंगे, W1 और W2 और बायस को सबको 0 लेके चलेंगे, ठीक है। जब इन्होंने कैलकुलेट किया होगा ना तुमको ये फॉर्मूला मिला है, ये पर्टिकुलर लाइन मिली है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ओके, wherein -1 x plus x1 plus x2 is equal to 0. Now if you just apply it over here, this is the line that you'll get. This is the variety. If you can apply it, just see whether you'll get this line or not. तो अगर सपोज कीजिए कि x2 क्या है, y एक्सिस पर है और x1 x एक्सिस पर है, इस जगह पर x2 is on the y axis and x1 is on the x axis like this. Now over here the value of x1 is 0, isn't it? जब x1 की वैल्यू 0 है तो x2 की वैल्यू क्या हो रही है, x1 की वैल्यू जब 0 है तो x2 की वैल्यू हो रही है +1, है ना, इसीलिए ये पॉइंट आएगा एक, ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा। और जब x2 की वैल्यू 0 हो रही है, यानी यहाँ ये x2 इज ऑन द y एक्सिस, जब x2 की वैल्यू 0 हो रही है, इधर यहाँ 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू क्या होगी, 1, तो ये दूसरा पॉइंट आ रहा है। तो ये जो लाइन है वो इधर लाइन, ये लाइन बन रही है। नाउ यू कैन सी दैट इन दिस केस यू कैन सी दैट व्हेन यू अप्लाई ऑल ऑफ दिस, ये सब आप अगर प्लॉट करेंगे तो ये जो लाइन है वो एक्चुअली डिवाइड कर रही है दो टाइप के इनपुट्स को। यहाँ सब इस लाइन के इस तरफ, एनीथिंग लेस देन दिस लाइन इज -1, anything more than this line is +1. So this is actually a linearly separable example wherein we are drawing a line and the two classes are getting separated. So this is a very simple example wherein we are taking two inputs and the two inputs के variety अगर आप देखें, अगर बाइनरी इनपुट ले रहे हैं हम तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, इजंट इट। इसी तरह से अगर 3 इनपुट होता है तो आपको पता है कैसे बनाते हैं हम लोग, x1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 0 0 4 बार लिखेंगे, 1 1 1, है ना। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स पॉसिबल। तो ये पहले हम ये देख लेते हैं और फिर 3 इनपुट के साथ भी आगे देखेंगे। तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि दिस पर्टिकुलर लाइन दैट इज ऑलरेडी मेड, अभी हम देखेंगे किस तरह से बनाएंगे हम इसको और वेट्स कैसे करेंगे, मगर सिर्फ ये एग्जाम्पल अगर हम देखें, and this line if you plot, we can see that this line is being made wherein it is just separating the two classes. Similarly, if we see a logical OR function, if we see a logical OR function like this,
What happens when is it when is the or zero? Only when both the inputs are zero. When if any one of the input is one, the y value would become one. ठीक है? तो अभी आपको बाइपोलर डिसीजन लेना है, इनपुट आपका बाइपोलर है, तो आप क्या करेंगे, जहां जहां माइनस जीरो है वहां वहां आप -1 लिख देंगे. ठीक है, बस इतना ही अंतर है. तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है इनपुट बाइपोलर है तो ये -1 वाला एग्जाम इनपुट लेंगे. अगर इनपुट बाइनरी है तो ये जो बॉक्सेस में मैंने बनाया है इस तरह से आप इनपुट लेंगे. हम्म? ये भी हो सकता है कॉम्बिनेशन की बोला गया कि बाइपोलर इनपुट है मगर बाइनरी आउटपुट है, ऐसा भी हो सकता है. तो बाइनरी इनपुट है और बाइपोलर आउटपुट है, तो जहां जहां -y में है उसी जगह पर -1 आएगा. तो विल जस्ट लुक इनटू इट लेटर ऑन. ठीक है, तो क्वेश्चन में डिफर. नाउ एज यू लुक इनटू दिस, so this is they have already found it, so we'll also get to know how they have founded this weights w1 w2. ठीक है, उन्होंने ये लाइन बनाई है for this OR function, logical OR function. 1 plus x1 plus x2 is equal to 0. Now, if you look into it, when the value of x2 is 0, what happens? The x1 की वैल्यू क्या होती है? जब x2 की वैल्यू 0 हो रही है तो x1 की वैल्यू क्या होती है? -1. इसी तरह से जब x1 की वैल्यू 0 होती है तो इस लाइन में अगर आप प्लेस करेंगे, जब x2 की वैल्यू 0 होती है तो x1 की वैल्यू क्या होती है? -1. तो ये पॉइंट्स दो आते हैं हमारे पास, एक ये पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट. तो अब आप यहाँ लाइन इधर बनाएंगे. तो इस और फंक्शन को भी अगर हम देखें तो जो ये लाइन है ये दोनों ही टाइप का जो इनपुट डेटा है इसको बाइफर्केट कर रही है. सो एनीथिंग बिलो दिस लाइन इज -1, anything above this line is 1, isn't it? So there are two classes wherein y is equal to 1 and classes wherein y is equal to -1. So this ये दो जो एग्जाम्पल्स हमने देखे ये क्या है? लीनियरली सेपरेबल क्लासेस के एग्जाम्पल हो गए. मगर ऐसा होता है जैसे एक्सॉर फंक्शन को देखें हम, तो दे आर नॉट लीनियरली सेपरेबल. इसमें आप कैसे भी लाइन, अगर आप एक्सॉर को प्लॉट करेंगे तो इस तरह से आएगा, यहाँ 1 या -1 1 या -1. Now you cannot draw a line wherein it can separate these two classes. Okay, so XOR is not linearly separable class. So no line can be drawn to separate the two classes. Okay, so now suppose एक example इस तरह से question दिया हुआ है कि implement the AND function using the perceptron network for bipolar inputs and output targets. मतलब इनपुट भी बाइपोलर है और टारगेट भी बाइपोलर है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं, आप अगर इसमें ये लिखा होता कि इनपुट बाइपोलर है मगर टारगेट बाइनरी है, ऐसे भी लिख सकते थे. ठीक है, तो उस केस में क्या होता? इनपुट बाइपोलर है तो ये जहां जहां 0 आता है वहां वहां -1 आ जाएगा, और यहाँ जो है जहां जहां 0 हो रहा है वहां -1 क्यों आ रहा है? क्योंकि टारगेट भी बाइपोलर है. अगर बाइनरी होता तो जहां जहां -1 लिखा होता है वहां वहां 0 लिखना पड़ता. खैर, अभी पहले देख लेते हैं कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हाउ डू यू रियली फाइंड इट. सो व्हाट आर वी वांटिंग टू डू हियर? implement the AND function using the perceptron network for bipolar inputs and targets. The perceptron network, which uses the perceptron learning rule, is used to train the AND function. The network architecture is shown in this figure next में. The input patterns are presented to the network one by one. So ये पहले एक इनपुट जाएगा, ये पहला वाला जो इनपुट है ना, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 1 है. ये इनपुट पहले आप फीड इन करेंगे नेटवर्क में. हाँ, अगर वो टारगेट के बराबर आता है तो आप क्या करेंगे? फिर दूसरे वाले इनपुट को आप फीड इन करेंगे नेटवर्क में और देखेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आउटपुट. अगर सेम नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? वेट्स को बदल देंगे, और अगर सेम आ रहा है तो वेट्स को बदलेंगे नहीं और आगे देखते जाएंगे. तो व्हेन ऑल द 4 इनपुट पैटर्न्स आर प्रेजेंटेड, देन वन इपॉक इज सेट टू बी कंप्लीटेड. व्हाट इज अ इपॉक? जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हैं यहाँ फर्स्ट साइकिल में, ये इनपुट्स जो हैं फीड इन करके हम जो न्यूरल नेटवर्क है उसको ट्रेन हम कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं वन इपॉक. दूसरा इपॉक क्या है कि एक इपॉक के बाद जो भी वेट्स आ रहे हैं वो दोबारा से इस इनपुट के साथ हम उसको ट्रेन करते हैं. तो दैट इज द सेकंड इपॉक. ऐसे ही हम कई सारे इपॉक्स कर सकते हैं, मगर आपके केस में ओनली 2 इपॉक्स तक आप कोई एग्जाम्पल को करेंगे आपके एग्जाम में.
2 इपॉक से ज्यादा आपको किसी एग्जाम्पल को नहीं करना है। तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? इनिशियली वेट्स आप क्या करेंगे, वेट एंड थ्रेशोल्ड्स आर सेट टू 0। तो आपके केस में आप थ्रेशोल्ड को दिया अगर नहीं है तो आप उसको 0 बना देंगे, वेट्स को 0 बना देंगे, बायस को भी 0 बना देंगे। इज इट ओके? तो आप अभी पूछ रहे थे ना कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको अगर नहीं दे रखा है तो इन सबको 0 लेना है आपको, अगर दे रखा है तो फिर उसके हिसाब से चलेंगे। और लर्निंग रेट जो है अल्फा की वैल्यू आपको 1 रखनी है। हाँ, तो वेट्स, बायस और थीटा की वैल्यू 0 रखनी है और लर्निंग रेट की वैल्यू अल्फा अल्फा जो है वो 1 रखनी है इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी इफ यू कैन जस्ट सॉल्व दिस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ इसको देखें, अगर ये इन्होंने बताया ना कि द ट्रेनिंग द नेटवर्क आर्किटेक्चर इज शोन इन फिगर 1। सो व्हाट इज द नेटवर्क आर्किटेक्चर? इस तरह से कि भाई x1 x2 दो इनपुट आ रहा है, उनके कुछ वेट्स हैं w1 w2 जो कि इनिशियली हम 0 ले रहे हैं, और जब हम टोटल अप करेंगे इसको तो बायस के साथ हमको ऐड करना पड़ेगा ना, एक बायस है, उसके साथ हमें ऐड करना पड़ेगा। द फर्स्ट इनपुट पैटर्न आप शुरुआत करेंगे, पहला इनपुट पैटर्न जहाँ की x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 1 है और जो टारगेट है उसकी भी वैल्यू 1 है। अगर आप एंड को देखें तो ऐसा है ना, देखिए इसमें यहाँ इसकी बात कर रहे हैं जो हमने यहाँ ऑलरेडी देखा है। x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू भी 1 है। यू कैन स्टार्ट एनीवेयर, इसका सीक्वेंस की वो नहीं है। या x1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू 0 है, तो y1 की वैल्यू 0 है। अगर बाइपोलर है तो इसको आप जहां जहां 0 है वहां -1 करेंगे। तो क्या लिखेंगे पहले कि x1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू -1 है, तो टारगेट की वैल्यू क्या है? -1। इस हिसाब से आप फीड इन करेंगे इसको, पहले x1 x2 की वैल्यू को फीड इन करेंगे और देखेंगे कि क्या वो टारगेट के बराबर आ रही है कि नहीं। ठीक है, so you'll take a particular tuple, x1 और x2, और टारगेट को देखते हुए आप जाके इनिशियली बायस और वेट्स को 0 लेते हुए आप कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, और जब आपको वैल्यूज मिल जाती हैं, ये जो वाई इन को कैसे फाइंड करते हैं आप? इस तरह से 0 प्लस एक्स की वैल्यू 1 है, वेट इनिशियली आप 0 ले रहे हैं, x2 की वैल्यू 1 है और w2 की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो वाई इन की वैल्यू आपको 0 आई। पर टारगेट क्या है भाई हमारा? टारगेट 0 था कि 1 था, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार वाई की वैल्यू आपको आ गई तो अब आप जाके देखते हो कि एक्टिवेशन फंक्शन जो है आपके ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, एक्टिवेशन फंक्शन के हिसाब से वाई की वैल्यू क्या आएगी। तो आप उस एक्टिवेशन फंक्शन में वाई की वैल्यू को फीड करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? अगर वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वाई की वैल्यू जो है वो आउटपुट जो है 1 होगा। अगर वो लेस देन 0 है तो y की वैल्यू -1 होगी, और अगर वो 0 है तो वो 0 रहेगी। हियर वी हैव टेकन थीटा एज 0। ठीक है, नाउ अब आप क्या करोगे? जो y आपको यहां से मिला है और जो आपका टारगेट था उसको देखोगे वो सेम है कि नहीं है। हियर टारगेट इज 1 मगर y जो आपको मिला है वो 0 है। इसका मतलब टारगेट और y की वैल्यू सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है। तो आप क्या करोगे? न्यू वेट कैलकुलेट करोगे ओल्ड वेट के थ्रू। ओके, अब ये कैसे किया हुआ है ना, ये हम एक्सेल शीट में एक बार देख लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा, फिर इसको स्लाइड को आप और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो आई विल जस्ट गो टू दिस एक्सेल शीट लाइक दिस। So what are we going to do is, this is the first epoch, this is the second epoch. What are the values of x1 and x2 are written? लर्निंग रेट हमको अल्फा 1 रखना है। टारगेट क्या है? अगर एंड कर रहे हैं तो 1 1 विल लीड टू 1, -1 1 विल लीड टू -1, है ना। 1 -1 इज -1, 1 1 इज 1। तो ये टारगेट है हमारा। वाई इन फाइंड करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे उस पूरे फॉर्मूला के थ्रू। आउटपुट आप फाइंड करेंगे एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू, और फिर देखेंगे कि ये वाई जो है वो टारगेट्स के इक्वलेंट हो रहा है कि नहीं है ना। वाई जो है वो टारगेट के इक्वलेंट है कि नहीं है, येस और नो। अगर नो है तो आप नया वेट्स फाइंड करेंगे। ओके, नए वेट्स कैसे फाइंड करते हैं? ओल्ड जो वेट है हमारा, ओल्ड वेट है 0, और पूरा जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। तो लेट्स गो एंड सी द, आई जस्ट ओपन द एक्सेल शीट फॉर यू ऑल, जस्ट लेट मी नो वेदर यू आर एबल टू सी दिस एक्सेल शीट। ये वैल्यूज आपको दी हुई है, आपको क्या फाइंड करना है? आपको ये फाइंड करना है y की वैल्यू।
y की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? y इन की वैल्यू W1 X1, W1 क्या है? इनिशियली वेट्स, दोनों वेट्स और बायस जो है वो 0 0 रखे हैं, ठीक है। W1 X1 यानी कि 0 ये जहां जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही W2 X2 प्लस बायस, बायस क्या वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। W1 W2 और बायस आप फाइंड कर सकते हैं ना इस तरह से टारगेट को, y इन को। एवरीवन कैन यू डू दिस? लेट्स डू इट नाउ, ओके। तो ये कैसे फाइंड किया मैंने, आप लोग एक बार देख लें, फिर क्लासरूम में जाएं और जरा ये बाइपोलर एंड जो है उसको आपको खुद ही फाइंड करना है। अभी आप फाइंड करेंगे, खुद देखेंगे करके, तभी समझ में आएगा आपको कि आप ये कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, आर यू गेटिंग दिस? हाउ डू यू फाइंड आउट वाई? वाई फाइंड करने के लिए W1 यानी क्या है? W1 यानी ये 0, ठीक है। 0 मल्टीप्लाइड बाय X1, दिस X1 जो कि 1 है, प्लस W2 क्या है? 0, वेट 0 है, मल्टीप्लाइड बाय X2 that is 1, plus bias, bias is 0, so I put 0. Is everyone okay with this? Finding out the y in value, X1 multiplied by W1, X2 multiplied by W2 plus bias. तो वाई डू वी नीड दिस? अब देखो इसके अंदर, जैसे इस केस में अगर आप देखेंगे ना, तो आप देखोगे जो टारगेट है, जैसे एंड जो है ना, अगर 1 1 आता है तो एक्चुअली आंसर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मगर जब हम इस इक्वेशन में जब हम पास कर रहे हैं तो हमको क्या आ रहा है? आउटपुट 0 आ रहा है। यानी कि जो हमारा जो इक्वेशन है ना, वो वो हमको डिजायर्ड आउटपुट नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ कि ये जो वेट्स हैं, इन वेट्स को हम बदलेंगे ताकि हमारा जो टारगेट है और जो हमारा आउटपुट है वो सेम हो जाए आगे जाकर। इतने टाइम हम वेट्स को बदलते रहेंगे, ठीक है। परसेप्ट्रॉन इज, सी इट इज, सी यू आर कन्वर्टिंग, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया कि आप ये सब्जेक्ट्स ले रहे हैं और आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि वो स्टूडेंट पास होगा कि फेल होगा, कोई इक्वेशन मैथमेटिकल मॉडल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ डेटा ऑफ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं जिसके, और मुझे ये भी है कि पास हो रहा है या फेल हो रहा है नहीं सोचे, तो अगर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पास हो रहा फेल हो रहा तो डायरेक्ट हो जाता है, प्लेसमेंट हुआ कि नहीं उसका, ठीक है। द पर्सन गॉट प्लेस्ड और नॉट, depending upon the marks of the subjects. Okay, so now what are we going to do is we are just wanting to find out, क्या हम एक mathematical equation find कर सकते हैं कि these are the marks of the student, then can we predict that this student will get placed or not? Is it okay? So what would happen? Suppose if I come up with an example, a equation of this sort, maybe in a particular subject, a student has not done well. So what I'll do, okay, this subject is not that important to study, but at least this subject is very important to study because it impacts the student. If we look it into a very raw way, okay, this subject is important to study, so I have to give more importance to this particular subject. अभी आप क्या करते हैं, हम लोग या एज स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि भाई मैं ये सोचती हूँ नहीं मुझे ये इजी लग रहा है इसलिए ये पढ़ लेती हूँ सब्जेक्ट को, और दूसरा सब्जेक्ट को मेरे को टफ लग रहा है तो नहीं पढ़ती हूँ, समथिंग लाइक दैट। और या मैं इस सब्जेक्ट को ज्यादा समय दे रही हूँ या दूसरे सब्जेक्ट को कम समय दे रही हूँ, मगर मैं अंदाजे से वो बात को कह रही हूँ, ठीक है। मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि ये सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आना जरूरी है कि नहीं है, ठीक है। मगर इफ आई एम हैविंग अ मैथमेटिकल मॉडल लाइक दिस, व्हाट हैपेंस, now I am clearly knowing from data this information is coming to me. Now I know this particular subject I have to give more time because it is going to really impact my placement. So this can be applied to anything, like it can be for a product for a company. कौन अलग अलग प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है, कौन सी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एडवर्टाइज करना जरूरी है, सो दैट उस support it is just talking about the profit of the company. So which particular product is actually requiring more of advertising time or more of investment from the कंपनी। सो अभी कैसे ना कंपनीज अंदाजे से लगा रही हैं, अंदाजे से वो कह रही हैं कि ये प्रोडक्ट में ज्यादा समय देते हैं, अंदाजे, मगर एक्चुअली डेटा उनको क्या कह रहा है वो फाइंड करने के लिए हमें इस तरीके का कोई भी डेटा माइनिंग का ये चाहिए होगा, जिसमें कि इफ इट इज मोर वेरी कॉम्प्लेक्स, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज अ परसेप्ट्रॉन वेर इन द वेट्स वी आर नॉट टेकिंग द वेट्स इनिशियली, वी आर टेकिंग वेट्स एट 0 0 0 इनिशियली, वी आर मेकिंग ऑल द प्रोडक्ट सेम। मगर जैसे जैसे अब आप डेटा फीड इन करेंगे क्या होगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स को वेट्स अलग अलग अपने आप मिल जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द डेटा दैट यू आर फीडिंग इन।
So what happens now? They are able to come to know that particular product has to be given more time or more investment into advertising has to be done in a product. So it can be applied to any exam, any domain. In fact, did you get it? Yes, ma'am. Huh? So it can be anything like. So if it is a complex problem, then we definitely apply this and definitely in the जैसे कि आप सोच रहे हैं जैसे नेटफ्लिक्स है आपको तो आपका एडवर्टाइजमेंट के आपका एक रिकमेंडर सिस्टम काम कर रहा है वो रिकमेंड कर रहा है कि ये मूवी आप देखें तो वो क्या कर रहा है कि आपने इससे पहले कौन सी मूवीज देखी हैं और कुछ लोग जो ये मूवीज देख चुके हैं वो और आगे कौन सी मूवी देखते हैं ना वो डेटा उनके पास ऑलरेडी है तो अब आप जब नए कुछ मूवीज की अलग अलग मूवीज देखते हैं तो वो आपको आपको वो जो मूवी आप देख सकते हैं वही आपको उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं ठीक है ना so that is they are having a neural network working behind it which is getting automatically trained the more it gets trained the more the weights are getting crystallizing more accurate would be their answer because ऐसे तो सिर्फ अंदाजा नहीं लगाते हैं ना आजकल तो वैसे तो हम अंदाजा ही लगाते थे पहले मगर just because of these powerful networks powerful algorithms that are there we do not have to just वे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं a lot of data is available which can be fed into this perceptron and it can recommend a right kind of right target को आप right customer को target कर सकते हो ठीक है अच्छा अभी यहाँ आप लोग ने देखा गूगल शीट जरा देखें जरा आप लोग करके देखें ये वाइन कैसे फाइंड करेंगे जरा जाके देखें ऐसे वाइन what we have to do now is we have to just change the weights now. So how do you change the weights? ये weight 1 को अगर आपको change करना है, now I'm just coloring this over here. W1 is the new weight. How will you get the new weight? New weight is old weight. मतलब ये 0 जो है, ये मेरा old weight है. Old weight plus alpha which is 1. T target कौन सा है? Target ये है मेरा. T is the target और that is 1. And x1 यानी ये value. इससे हमें ये नया वो मिल रहा है वेट W1 इसी तरह से नया W2 वेट मिलेगा इसी तरह से नया बायस मिलेगा ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखे हैं आपको अप्लाई कर रहे हैं अब मैंने क्या किया ये जो अभी वेट्स क्रिस्टलाइज हुए इनको 1 को इधर लेके आ गया ठीक है अब नाउ अगेन आई एम गोइंग टू फीड इन द न्यू वेक्टर -1 x1 is now -1 x2 is now 1 and now I am going to find out the y in value y इन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम और ये देख रहे हैं कि वो आउटपुट ये आउटपुट y कैसे मिल रहा है y आउटपुट कैसे मिल रहा है ये 0 1 कैसे मिल रहा है हमें ये y इन का जो भी वैल्यू है ना जैसे 0 आया तो हम यहाँ आके देख रहे हैं क्या y इन का वैल्यू 0 है हाँ तो जो आउटपुट y जो है वो 0 होना चाहिए तो दिस एक्टिवेशन फंक्शन के हिसाब से ये आउटपुट जो है y आउटपुट आप लेके आ रहे हैं आर यू गेटिंग इट जैसे कि अगर y इन का वैल्यू 1 है अगर y इन का वैल्यू 1 है तो क्या करेंगे आप इट इज ग्रेटर देन 0 isn't it 1 यानी ग्रेटर देन 0 तो y जो है उसका आउटपुट उसका वैल्यू क्या आएगा 1 इसी तरह से अगर सपोज 2 है या 3 है तो भी y का वैल्यू क्या रहेगा आपका 1 ही रहेगा सो दिस इज द एक्टिवेशन फंक्शन नाउ यू आर सीइंग दिस आउटपुट जो है ये आउटपुट y और टारगेट जो है वो सेम है कि नहीं है एक टाइम के बाद आपको दिखेगा कि ये जो आउटपुट है और ये जो t वैल्यू है वो सेम है तो दिस इज द फर्स्ट इपॉक ठीक है फर्स्ट इपॉक के बाद आपके यहाँ जो W1 W2 और B है वो कुछ वैल्यूज आ जाएंगी ठीक है सेकेंड इपॉक मतलब ये सभी जो हमने इनपुट किए थे दोबारा से वही का वही प्रोसेस करना है मगर अभी आपको वेट्स 0 नहीं लेने हैं मन की यहाँ जो लास्ट में जो वेट्स आए होंगे ना वो वेट्स लेने हैं आपको सपोज इट इज 1 1 1 और 0 ठीक है इस तरह से W1 की वैल्यू 1 है W2 की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 0 है इस फर्स्ट इपॉक के बाद ना फर्स्ट साइकिल के बाद फिर आप दोबारा से ये ट्रेनिंग जो है आप दोबारा से आप फीड इन कर रहे हो विद द लेटेस्ट वेट्स ओके सो नाउ हो सकता है कई सारे इपॉक्स करने पड़े बिफोर अ पर्टिकुलर वेट्स आर स्टेबलाइज एक समय के बाद ये वेट्स और बायस जो है वो स्टेबलाइज हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए इज इट ओके Are you okay with it? So in your exam, you have to go to 2 epoch only and find out the weights W1, W2 and B. Is it fine everyone? Can you all do for this? अब जैसे बाइपोलर और एंड के लिए किया है इसी तरह से आपका एक मैंने शीट बाइपोलर और के लिए भी लिख के रखा है
ठीक है, बाइनरी और है और इनपुट जो है बाइपोलर टारगेट है। तो बाइनरी और मतलब x1 x2 जो है वो 1 0 1 0 रहेंगे, मगर जो टारगेट है वो 1 1 -1, जहां जहां 0 है वो वहां -1, और सेम सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। और y का वैल्यू जब जो डिसाइड आप करते हैं तो आपको ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसको देख के करना है।